students, myself Rubina Chaudhary, and today I am back with one new lecture of life process in living organism part 1. Student, we have already completed aerobic respiration and anaerobic respiration. Students, we need energy for doing any sort of respiration. That means for energy production there has to be an intake of food. If we consume food, then only we will get energy, and from that only our body will produce ATP. Now students, what we are going to today discuss is energy from different food components. What are the energy that we can obtain from different kind of foods? So student, firstly we are going to talk about carbohydrate. Beta, carbohydrate is one of the most important constituent of food. Like whether we eat rice, we get carbohydrate. Whether we eat chapati, we get carbohydrate. In fruits there are carbohydrate. Like any sweet thing, it always have carbohydrate in it. So what is a major role of carbohydrate? Carbohydrate provide us energy to perform various day-to-day activities. Like if I am walking, if I am eating, if I am running, then that amount of energy we get from carbohydrate. Carbohydrate is nothing but a glucose, and in glucose we have already seen how glycolysis take place and how this glycolysis will be getting converted into pyruvic acid, and by the end how we are going to get energy. But students, now we are going to talk about another sources of food from which we can obtain the energy. So today we are going to talk about proteins and all other food components which provide us energy. Firstly, I am going to talk about protein. Beta, we all know that carbohydrate give us energy for our day-to-day activities. But when I am talking about protein, it helps us in a bodybuilding process. Protein is very important for continuation of wear and tear mechanism in our body. So what are proteins बेटा? बेटा प्रोटीन्स जो होते हैं ये अमाइनो एसिड से बने होते हैं. मतलब जब बहुत सारे अमाइनो एसिड मिल जाते हैं तो हमें मिलकर क्या देते हैं? प्रोटीन्स देते हैं. तो प्रोटीन्स क्या है बच्चा? प्रोटीन्स आर अ मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम अमाइनो एसिड. तो हम अगर बात करें प्रोटीन्स की, तो प्रोटीन्स क्या है? प्रोटीन्स क्या है? दे आर macromolecules. Macromolecules. When I am using a word macromolecule, that means many molecules. Many molecules. They are macromolecules obtained by binding of amino acids. Amino acids. In our body there are 21 types of amino acids. तो जब ये छोटे छोटे amino acids, अलग अलग तरह के amino acid bind हो जाएंगे, एक ही में joint हो जाएंगे, तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रोटीन बोलेंगे. For now ये क्या है? अमाइनो एसिड है, और जब अमाइनो एसिड ज्वाइन हो जाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? हमें मिल जाएगा प्रोटीन. तो यहाँ पे हमारे पास आ गया प्रोटीन. प्रोटीन क्या है? व्हेन मेनी अमाइनो एसिड्स कम टुगेदर दे गिव अस प्रोटीन. बेटा अगर मैं प्रोटीन्स के बारे में बात करूँ, तो वो प्रोटीन जो एनिमल के बॉडी से ऑब्टेन होता है, दे आर नोन एज अ फर्स्ट क्लास प्रोटीन. यूजुअली प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही होता है. तो वी विल राइट डाउन प्रोटीन्स विच आर obtained from animals are first class protein. ये सबसे बेस्ट क्वालिटी के प्रोटीन्स होते हैं. नाउ स्टूडेंट्स, व्हाट वी हैव टू सी हियर कि अगर मैं 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन को कंज्यूम करती हूँ, इफ़ मेरा 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन का कंजम्पशन होता है, तो ये मुझे 4 किलो कैलोरीज का एनर्जी देगा. तो अगर मैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करूँ स्टूडेंट्स, तो कार्बोहाइड्रेट में भी 1 ग्राम का कार्बोहाइड्रेट अगर मैं कंज्यूम करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा बेटा? मुझे भी 4 किलो कैलोरीज की एनर्जी मिलेगी. इफ़ आई टॉक अबाउट कार्बोहाइड्रेट, 1 grams of carbs will again give me
4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस क्या है? व्हाट डिफरेंस वी कैन सी इन प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट? यूजुअली व्हाट सी व्हेनेवर एनीवन इज ऑन वेट लॉस प्लान और दे आर following a some sort of diet, तो what they are recommended is कि they should reduce their intake of carbs and should increase the intake of protein. Why is it so? If we are getting same amount of energy from both of them. Students, what happen अगर आप प्रोटीन खा रहे हो और एक्सेस अमाउंट में खा रहे हो, जितना आपके बॉडी को नीडेड नहीं है, आप उससे ज़्यादा प्रोटीन खा रहे हो, तो होगा क्या ये बेटा, आपके बॉडी में वो एक्स्ट्रा प्रोटीन स्टोर नहीं होगा, वो आपके बॉडी से निकल जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। एक्सेस ऑफ प्रोटीन्स गेट एलिमिनेटेड फ्रॉम आवर बॉडी। वेरेज अगर आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हो एक्स्ट्रा, तो वो आपके बॉडी में जो है बेटा वो स्टोर हो जाता है और उससे क्या हो जाता है, आपका वेट गेन होता है आपके लिवर में, फिर वो धीरे धीरे फैट्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक्सेस ऑफ प्रोटीन डज नॉट गेट स्टोर्ड इन आवर बॉडी। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोटीन। बेटा होता क्या है प्रोटीन्स में, अगर हम एनर्जी प्रोडक्शन के बारे में बात करें, अगर आप प्रोटीन्स खाते हो तो हमें मिलेगा अमाइनो एसिड्स। अमाइनो एसिड्स आर ऑब्टेन्ड, हमें मिलेंगे अमाइनो एसिड्स आफ्टर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर एन एग्जाम्पल आपने एग खाया, तो अगर एग के अंदर प्रोटीन्स होते हैं तो वो एग जब मेरे बॉडी में जाके डाइजेस्ट होगा तो मेरे बॉडी में मुझे क्या मिल जाएगा, अमाइनो एसिड्स मिल जाएगा। अब ये अमाइनो एसिड्स क्या होंगे, ब्लड हमारा ब्लड एब्जॉर्ब्स दी अमाइनो एसिड, ब्लड एब्जॉर्ब कर लेगा अमाइनो एसिड को एंड ये क्या करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा, ट्रांसपोर्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ ऑर्गन्स एंड सेल्स। अब अमाइनो एसिड, मान लो आपने प्रोटीन खाया, आपके बॉडी में प्रोटीन का ब्रेकडाउन हुआ, प्रोटीन का ब्रेकडाउन होके अमाइनो एसिड बन गया। अब आपका ब्लड क्या करेगा, अमाइनो एसिड लेगा और अमाइनो एसिड को ऑर्गन्स तक पहुंचाएगा और हर एक सेल्स तक पहुंचाएगा। अब सेल्स उस अमाइनो एसिड को लेंगे और जिसकी ज़रूरत होगी वो उसका प्रोडक्शन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं इसके बारे में बात करूं तो मैं इसको आपको कुछ इस तरह से एक्सप्लेन करूंगी, हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है अमाइनो एसिड, वी हैव अमाइनो एसिड। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या आ गया, अमाइनो एसिड्स आ गया। अब जब आपका अमाइनो एसिड जो है बेटा वो पहुंचेगा आपके स्किन के पास, अगर हमारे स्किन के सेल्स के पास अमाइनो एसिड पहुंचेगा तो वो स्किन के पास जाके बनाएगा मेलेनाइन, ओके, और उसके साथ साथ कैरेटीन विच आर रिक्वायर्ड फॉर आर स्किन। हमारे स्किन में जो रिक्वायरमेंट थी वो किसकी थी, मेलेनाइन और प्रोटीन की। तो जैसे ही अमाइनो एसिड जो है स्किन के पास पहुंचा तो हमारे स्किन ने उस अमाइनो एसिड के हेल्प से बना लिया मेलेनाइन एंड कैरेटीन। नाउ स्टूडेंट्स, अब जब ये अमाइनो एसिड हमारे बोन्स के पास पहुंचेगा बेटा, तो हमारे बोन्स इससे बनाएंगे ऑसीन, यहाँ पे बनेगा ऑसीन। सो स्टूडेंट्स, मैं क्या देख रही हूँ, जहाँ जहाँ पे प्रोटीन्स मतलब अमाइनो एसिड्स जा रहे हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या कर रहे हैं, और अलग अलग जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। स्किन के पास मुझे मिल गया मेलेनाइन एंड कैरेटिन। नाउ जब बेटा यही अमाइनो एसिड जाएगा पैनक्रियाज में तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा ट्राइप्सिन और उसके साथ साथ इंसुलिन, क्योंकि हमारे पैनक्रियास का काम क्या है, ट्राइप्सिन और इंसुलिन का प्रोडक्शन करना। तो यहाँ पे मुझे मिल गया पैनक्रियास से ट्राइप्सिन एंड इंसुलिन। जब हमारा अमाइनो एसिड जो है बेटा ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाएगा तो पिट्यूटरी ग्लैंड में जाके ये क्या कर देगा, ये बनाएगा हार्मोन्स। हार्मोन्स प्रोडक्शन जो है
वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड्स में होंगे। तो व्हाट आई कैन सी स्टूडेंट्स, जैसे जैसे अमाइनो एसिड्स जा रहा है, जहाँ पे जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है। When your amino acid will students move to muscles, अब हमारे मसल्स में वो बनाएगा एक्टिन, मायोसिन्स और उसके साथ साथ वॉट एवर इज़ रिक्वायर्ड इन टर्म्स ऑफ फाइबर्स, जो भी फाइबर्स की रिक्वायरमेंट होगी हमारे बॉडी में उसका भी ये प्रोडक्शन करेगा। तो व्हेन इट विल गो टू मसल्स तो हमें मिलेंगे एक्टिन्स एंड मायोसिन्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि अब जब आपका अमाइनो एसिड्स ब्लड में जाएगा तो ब्लड में जाके वो क्या बनाएगा, तो वो बनाएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन from amino acid we are getting various constituents which are required in our body. So students, अगर मैं ऐसा लिख दूँ कि अमाइनो एसिड once reaches to organs and cell, जैसे ही आपका अमाइनो एसिड ऑर्गन्स और सेल्स तक पहुँच जाता है, I will write down here, अमाइनो एसिड once reaches to organs and cells, जैसे ही ये ऑर्गन्स एंड सेल्स तक पहुंचता है बेटा, प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ, ये क्या करेगा, वेरियस टाइप्स ऑफ नेसेसरी थिंग्स, प्रोड्यूस ऑन वेरियस टाइप्स ऑफ नेसेसरी विटामिन्स एंड प्रोटीन्स एवरीथिंग। तो ये वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो करता है। अमाइनो एसिड्स आर नथिंग बट जब प्रोटीन का ब्रेक डाउन होता है तो हमें अमाइनो एसिड्स मिलते हैं। अभी बेटा हम लोग क्विकली सुन लेते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा है। बेटा प्रोटीन्स जो होते हैं ये बने हुए होते हैं अमाइनो एसिड से। सो इफ दे आस्क यू व्हाट आर प्रोटीन्स, तो प्रोटीन्स आर मैक्रोमोलिक्यूल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड। दैट मीन्स व्हेन एनी अमाइनो एसिड कम्स टुगेदर वी गेट प्रोटीन। जब मैं प्रोटीन को कंज्यूम करूंगी, वेन एवर आई कंज्यूम प्रोटीन इट विल ब्रेक डाउन इनटू माय बॉडी एंड विल प्रोड्यूस अमाइनो एसिड्स। अब ये अमाइनो एसिड्स ब्लड के थ्रू मेरे बॉडी के हर एक ऑर्गन्स और सेल्स तक जाएंगे। तो जब अमाइनो एसिड स्किन के पास जाएगा तो वो मेलानाइन और कैरेटीन का प्रोडक्शन होगा। वहीं पे जब वो बोन्स के पास जाएगा तो देयर विल बी अ प्रोडक्शन ऑफ ऑसिन। इफ़ इट गोज़ टू पैनक्रियास तो वी विल गेट ट्राइप्सिन एंड इंसुलिन। इफ़ इट गोज़ टू पिट्यूटरी ग्लैंड इट विल प्रोड्यूस वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। मसल्स के पास गया तो एक्टिन एंड मायोसिन्स। व्हेन इट गो टू ब्लड वी विल गेट हीमोग्लोबिन। तो ऑल द प्रोडक्शन विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट विच इज नीडेड इन आवर बॉडी. So this is a very important property of a protein. So whenever students you have to understand कि even 1 gram of protein also give me 4 kilocalories energy. So what is the basic difference when I am talking in terms of protein and in terms of like carbohydrate? तो बेटा what happens here is carbohydrate में जो हम एक्स्ट्रा फूड खाते हैं वो हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है, लेकिन वहीं पे अगर मैं प्रोटीन्स में कुछ एक्स्ट्रा कंज्यूम करती हूँ तो वो मेरी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, बट वो यूरिन के थ्रू हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है, तो इससे वेट गेन नहीं होता है. स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट सो दैट वी कैन मूव टू द नेक्स्ट फूड कंपोनेंट. ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप यू आर डन विथ प्रोटीन्स. अब प्रोटीन्स के बाद हम जो अपने नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे, फूड कंपोनेंट के बारे में, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ नोन एज स्टूडेंट्स लिपिड्स. लिपिड्स क्या होता है? लिपिड्स स्टूडेंट्स, लिपिड्स आर नथिंग बट दे आर फैटी एसिड. जो भी आप कंज्यूम करते हो, वेदर इट इज़ अ घी या आप ऑयल कंज्यूम कर रहे हो, बटर कंज्यूम कर रहे हो, चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो ऑयली होती है और ग्रीसी होती है उसे हम क्या बोलते हैं? लिपिड्स बोलते हैं. तो इफ़ आई टॉक अबाउट लिपिड्स, तो यहाँ पे क्या है? लिपिड इज़ अ सब्सटेंस फॉर्म बाय स्पेसिफिक बॉन्ड बिटवीन फैटी एसिड एंड अल्कोहल. इट इज़ और सब्सटेंस, ये एक सब्सटेंस है विच इज़ ऑब्टेन
by specific bond between fatty acid and alcohol. अल्कोहल एंड फैटी एसिड के बीच में जो बॉन्ड बनता है तो हमें क्या मिल जाता है बेटा, लिपिड्स मिल जाता है. मतलब फैटी एसिड प्लस अल्कोहल विल गिव मी लिपिड्स, और यहाँ से हमें मिल जाएगा लिपिड्स. अब बेटा अगर हम लिपिड्स के बारे में बात करें तो व्हाट हैपन्स, ये लिपिड्स हमारे बॉडी में क्या करते हैं. तो मैं बात करूँ तो फॉस्फोलिपिड बन गया. Phospholipids are formed from fatty acid. फॉस्फोलिपिड्स मिल गया मुझे फैटी एसिड से. तो बेटा जब मैं फॉस्फोलिपिड्स की बात करूँ, फॉस्फोलिपिड्स आर रिक्वायर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, एज पर आर रिक्वायरमेंट देयर इज अ प्रोडक्शन. जैसे जैसे हमारा रिक्वायरमेंट है उसी हिसाब से क्या होता है बेटा, प्रोडक्शन होता है. अगर मैं 1 ग्राम ऑफ लिपिड्स को कंज्यूम करती हूँ बेटा तो मुझे लार्ज अमाउंट में एनर्जी मिलेगा. दैट मीन्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन विल टेक प्लेस. अलॉन्ग विद दैट हमारे बॉडी में जो सेक्स हार्मोन्स होते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एल्डोस्टेरोन, ये सारे सेक्स हार्मोन का भी फॉर्मेशन जो है लिपिड्स करता है. सो इट इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड स्टूडेंट्स कि आपके डाइट में जो है स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट हो. आप कंप्लीटली अपने फूड में से घी, ऑयल या ये सब चीज़ें एलिमिनेट नहीं कर सकते हो. 3 टेबलस्पून ऑफ ऑयल कैन बी डाइजेस्टेड बाय योर बॉडी एवरी डे, बिकॉज इनका भी कुछ फंक्शन है आपके बॉडी में. बट अगेन देयर हैज़ टू बी अ लिमिटेड कंजम्पशन ऑफ फैटी एसिड्स या कोई भी ऑयली ग्रीसी चीज़, बिकॉज यू कैन सी यहाँ पे ये लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं बच्चा, एनर्जी प्रोड्यूस करते. तो अगर आप ज़्यादा खाओगे तो ये आपके बॉडी में फैट्स के फॉर्म में स्टोर हो जाएंगे एंड देन इट विल बी रिजल्ट इन अ ब्लॉटिंग ऑफ अ स्टमक एंड वेट गेन. तो यहाँ पे लेस अमाउंट में इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे बॉडी में. नाउ स्टूडेंट्स जब हमने फैटी एसिड का पार्ट कंप्लीट कर लिया है तो हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन्स. विटामिन्स क्या होते हैं बेटा, विटामिन्स हमारे बॉडी में जो है जब बहुत सारे हेट्रोजीनियस मतलब डिफरेंट कंपाउंड्स मिलके विटामिन्स को प्रोड्यूस करते हैं. अब अगर हम लोग बात करें व्हाट इज़ विटामिन, हेट्रोजीनियस कंपाउंड, ये बहुत सारे अलग अलग चीज़ों को मिला के विटामिन बनता है. हेट्रोजीनियस कंपाउंड विच आर असेंशियल, जो ज़रूरी है, विच आर असेंशियल फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी. प्रॉपर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ बॉडी के लिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमारे बॉडी में विटामिन्स प्रेजेंट हो. बेटा विटामिन्स जो होते हैं अगर हम नॉर्मल टर्म्स में देखें तो देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ विटामिन्स. तो विटामिन्स का क्लासिफिकेशन है, विटामिन्स आर ऑफ विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई, के. विटामिन्स ए, बी, सी, डी, ई, के. आउट ऑफ दैट बी और सी वाटर सल्यूबल होते हैं, मतलब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाते हैं. वहीं पे विटामिन ए, डी, ई, के दे आर फैट सल्यूबल. बच्चा ये क्या होते हैं, फैट सल्यूबल होते हैं. स्टूडेंट्स विटामिन अगर आपके बॉडी में लेस अमाउंट में हो या विटामिन की डेफिशिएंसी हो तो आपकी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ नहीं होगी. विटामिन एक ऐसा कंपाउंड है जो आपके बॉडी में प्रेजेंट होना चाहिए अगर आपको एक हेल्दी लाइफ जीनी है. तो अगर थोड़ा भी विटामिन का डेफिशिएंसी हो जाती है देन ऑल्सो यू कैन फेस वेरियस टाइप्स ऑफ डिजीज, जैसे कि नाइट ब्लाइंडनेस हो गया एंड देन यू कैन सी स्किन पे रैशेज आना एंड देर आर वेरियस रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ का प्रॉपर ना हो जाना.
ये सारी चीज़ें हो सकती हैं अगर विटामिन्स की डेफिशिएंसी होती है तो। विटामिन एक वाइटल एलिमेंट है हमारे बॉडी के लिए, जिसके बगैर हम एक हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते हैं। बेटा जब हमने विटामिन्स के बारे में बात कर ली, नाउ स्टूडेंट्स प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट ताकि हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स की भी बात कर लेते हैं। बेटा जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फूड कॉन्स्टिट्यूएंट है जिसके बगैर लाइफ पॉसिबल ही नहीं है, आई एम टॉकिंग अबाउट वाटर। स्टूडेंट्स अब हम लोग नेक्स्ट बात जो है वो वाटर के बारे में करने वाले। बेटा वी ऑल नो, हमें बताने की ज़रूरत भी नहीं है कि वाटर का क्या इंपॉर्टेंस होता है। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वाटर। वाटर क्या है? वाटर इज़ असेंशियल फॉर लाइफ, नो डाउट, बिकॉज मेरे बॉडी का 60 to 65% से लेके 75% ऑफ आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ वाटर। 65 to 70% वाटर प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। बेटा हमारा जो सेल है उसके अंदर 70% वाटर प्रेजेंट है। हमारे सेल के अंदर 70% वाटर प्रेजेंट है, और वहीं पे हमारे ब्लड के अंदर 90% वाटर जो है स्टूडेंट्स वो प्रेजेंट है। हमारे ब्लड के अंदर होता है 90% ऑफ वाटर। अगर थोड़ा सा भी आपके वाटर का इंटेक ख़त्म हो जाता है तो आपकी बॉडी डिहाइड्रेट होने लगेगी, और डिहाइड्रेशन होने से आपके लाइफ के जो वेरियस एक्टिविटीज़ है स्टूडेंट्स वो क्या हो जाएंगी, वो इफ़ेक्ट करेंगी। तो इफ़ आई टॉक अबाउट दिस, functioning of cell and whole body will be disturbed even if there is a little loss of water. Functioning of cell and whole body will be disturbed if there is स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस। अगर थोड़ा भी वाटर लॉस होता है आपके बॉडी में तो आपके बॉडी की फंक्शनिंग जो है बेटा वो रुक जाएगी डिहाइड्रेशन होने की वजह से, बिकॉज हमारे बॉडी में वाटर जो है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट इज फाइबर। फाइबर क्या है? फाइबर्स वो हैं जो हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर सकती है। वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, बट व्हाट डज फाइबर डू? फाइबर हेल्प इन आर डाइजेशन। वो हमारे डाइजेशन में क्या करता है बेटा? हेल्प करता है। तो अगर हमारे फूड में स्मॉल अमाउंट में फाइबर्स प्रेजेंट है तो हमारा डाइजेशन पहले के कंपैरिजन में मच बेटर होगा, और उससे बच्चा आपका फूड इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइबर इनटेक शुड बी ऑलवेज देयर इन योर फूड। और ये फाइबर हमें यूजुअली कहाँ से मिलते हैं बेटा? तो हमें फाइबर्स जो है ये ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट से मिलते हैं। व्हाट आर फाइबर्स? अगर हम फाइबर्स के बारे में बात करें, वी कैन नॉट डाइजेस्ट फाइबर, वी कांट डाइजेस्ट फाइबर। हम फाइबर को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, बट इट हेल्प्स इन डाइजेशन, इट हेल्प्स इन डाइजेशन। बट इसकी रिक्वायरमेंट होती है बच्चा डाइजेशन के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइबर, स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइबर इज नेसेसरी एंड दिस विल मेक योर डाइजेशन मच बेटर। और ये मिलता कहाँ है हमें फाइबर्स? तो फाइबर्स हमें मिलते हैं वेजिटेबल्स में, और एल्सी ग्रीन वेज में, और यहाँ पे आपको मिलते हैं ये फ्रूट्स में। तो यू शुड ऑलवेज मेक श्योर दैट योर डाइट ऑल्सो इंक्लूड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइबर अलॉन्ग विथ vitamins, proteins, lipids and water. We should always have an intake of a फाइबर। स्टूडेंट्स ये हमने अपने फूड कंपोनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया है, जो हमारे फूड कंपोनेंट्स होते हैं और उससे क्या एनर्जी प्रोडक्शन मिलता है। सो स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माय लेक्चर्स।